Hello everyone, welcome to the Riders Roundtable. I'm Dinesh. I'm Chandresh. And today we are going to talk everything about adventure motorcycling. So, Chandresh, when we started our ride, we were on cruisers, and slowly we have transitioned ourselves from cruisers to adventure motorcycles. So this journey has been quite learning experience for us, and we noticed that touring and adventure riding is very different in terms of motorcycle, gears and riding skills. Absolutely. So today we have Nakul Malik, a motorcycle skill coach. He does workshops, trainings and boot camps focused on off-road motorcycling. Nakul is also a rally winner above 800cc class. Let's welcome Nakul on the Riders Roundtable. Welcome Nakul. Thank you for having me. So जैसे दिनेश ने बताया कि हम तो क्रूजर वर्ल्ड से एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग के अंदर आए हैं. Tell us about your journey. So I was fortunate that मेरी journey जो start हुई, it started directly from adventure motorcycling. So इतनी journey है मेरी. तो नकुल, मैं जब क्रूजर्स चला रहा था और मेरी ट्रांजिशन क्रूज़र से एडवेंचर तक आई तो मेरे बाइक्स चेंज हुए. मैं अपनी क्रूज़र को लेके नहीं जा पाता था जहां आज मैं जा पा रहा हूं. तो बताओ कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, बाइक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? So we always see cruiser bike riders, sport bike riders, naked bike riders coming into the adventure world. And eventually everyone ends up on an adventure bike. जिसकी भी जर्नी जहाँ से भी स्टार्ट होती है वो खत्म एडवेंचर बाइक पे ही होती है. और वो एडवेंचर बाइक पे इसीलिए खत्म होती है बिकॉज एन एडवेंचर बाइक गिव्स यू द फ्रीडम टू डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू. आप उसे सड़क पे भी चला सकते हो, आप उसे पहाड़ों के ऊपर जहाँ पे कोई रोड नहीं है वहाँ भी चला सकते हो, आप उसे ट्रैक पे भी ले जा सकते हो ट्रैक टायर्स डाल करके. सो एन एडवेंचर बाइक लेट्स यू डू एवरीथिंग. इट इज़ एन ऑल एनकम्पासिंग वर्ल्ड. So because of that, everyone, like I said, उनकी journey ends at adventure bikes. अब क्यों? Why is it? Because by design, adventure bikes are very versatile. Right. One very important factor is that everyone is very comfortable on adventure bikes because of the geometry. Not only can the bike handle all sorts of terrain and perform well in every sort of terrain because of the geometry, it also gives a superior level of comfort to the rider. And जब rider comfortable होता है तो वो ज़्यादा लंबा चला सकता है, ज़्यादा safe चला सकता है. And of course, because we are all doing this to enjoy our lives, so he can get more enjoyment out of his biking. So that is the primary reason why people end up on adventure bikes, no matter where they start. जैसे आप दोनों ने देखा ही. बिल्कुल. हमारी जर्नी भी वही चीज़ रही है कि पहले जब हम क्रूजर्स चलाते थे तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ राइडिंग भी होती थी, और अब एडवेंचर होने के बाद जैसे आपने बताया कि हमारा राइडिंग का पैटर्न भी चेंज हो गया है. बिल्कुल. So another factor which I feel which is very important with adventure motorcycling is I personally have experienced this, that एक तो हमारे यहाँ सारी जो रोड है वो ऑफ रोड ही है ना. तो anyway adventure bikes are meant for us and our Indian roads. But one, like I said, very important factor is the suspension on an adventure bike. जब हम what do you think coming from the cruiser world जहाँ पीठ पे स्ट्रेन आता है हर गड्ढे में, और गड्ढे तो खत्म नहीं होते, उसमें रोड ढूंढते हैं. बिल्कुल. तो मैं आपसे इस बात से बड़ा सहमत हूँ कि आपने जो कहा कि हमारे यहाँ तो ऑफ रोड ही है, रोड्स तो बहुत कम है. तो मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि मैं वो टेरेन्स घूम पा रहा हूँ एंड एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ जो मैं कभी अपने क्रूज़र पे नहीं कर पा रहा था. आई एम नाउ मोर एंजॉइंग माई राइड्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन्स. क्यों चंद्रेश? पहले हम कहाँ जाते थे, पहाड़ों पे, कहाँ जाते थे हम नदियों में, अब हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. हाँ, तो जब से मतलब कि एडवेंचर राइडिंग के ऊपर हम गए हैं, मोटरसाइकिलिंग के ऊपर गए हैं, तो तब से हमारा एक्सपोजर जो है टुवर्ड्स द टेरेन्स वो बहुत ज़्यादा हो गया है. बिल्कुल. एंड वी कैन गो टू द प्लेसेस व्हिच वर रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर मोटरसाइकिल बिफोर coming to the adventure motorcycle. Yes, very true.
मोटरसाइकिल की लिमिटेशंस ओवरकम हो जाती हैं जब हम एडवेंचर बाइक में आते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, जो अपराइट पोस्चर है, हम देर तक चला सकते हैं व्हेन यू आर सिटिंग लाइक दिस, तो आपकी पीठ पे स्ट्रेन नहीं आता गड्ढों में। सस्पेंशन की भी कंट्रीब्यूशन है, बट ज्योमेट्री की भी है, आप पोस्चर की भी है, हैंडल बार्स की भी है, यू आर कंफर्टेबल, आपकी पीठ पे स्ट्रेन नहीं आता, आपके बाइसेप पंप नहीं होती है, फोर आर्म बाइसेप्स पे कुछ नहीं होता है, आप घंटों घंटों आराम से बैठ के चला सकते हो, पता ही नहीं चलता किलोमीटर कहाँ गए। हमने ये भी देखा है कि हम उस पर कई बार जब भी हमको थोड़ा सा लगता है कि अगर हम फटीग हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो खड़े भी हो जाते हैं, 5-10 मिनट खड़े हो जाते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी हमें हेल्प करता है कि और लंबा जाने के लिए। एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज जब आप खड़े होते हो एंड लाइक यू सेड ब्लड सर्कुलेशन थोड़े से जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्टेड थी बैठ के प्रेशर पॉइंट्स की वजह से वो दोबारा चल जाती है, तो यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ थिंग्स लाइक डीवीटी एंड सो ऑन। तो बार बार पोस्चर चेंज करना, एक जगह पे ना बैठना, ये सिर्फ और सिर्फ हम एडवेंचर बाइकिंग में कर पा रहे हैं, सो इट इज अ हेल्दियर चॉइस। चलो ये तो बाइक्स की बात होगी, हाँ। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा जो गियर्स भी है, राइडिंग गियर्स है, वो भी काफी चेंज हो गया स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि अब हम मतलब कि जो एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग का गियर है वो ही पहनते हैं उसके लिए। तो उसके बारे में कुछ बताओ कि व्हाई इट इज लाइक दैट। ये ना बड़ा लंबी और दुख भरी कहानी है, एक्सेप्ट इसमें दुख नहीं है। तो गियर की कहानी थोड़ी सी लंबी है, बट आई विल ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट इन अ कंसाइज वे कि क्या वी कैन कवर क्विकली इन टुडेज सेशन। तो गियर के अंदर ये है कि गियर इज वेरी स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ मोटरसाइकिलिंग यू डू। जो आप क्रूजर में पहनते थे वो पहन के आप एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग नहीं कर सकते। ये तो मैंने रियलाइज कर लिया। एक लेदर जैकेट, जीन्स और हाफ हेलमेट के अंदर आप अगर हार्डकोर ऑफ रोड रिवर बेड के अंदर ज़ांस्कार में जा रहे हो तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। मना नहीं कर सकते आपको करने से, बट आई डोंट थिंक एनी राइडर वुड वांट टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क, बिकॉज वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। तो एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग के लिए बिकॉज ऑफ द टेरेन, द पोस्चर एंड द काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू राइड इन, एंड ऑल्सो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंड कि आपकी बॉडी किस तरीके से मूव करती है एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग में, उसके हिसाब से आपको गियर चाहिए विच सपोर्ट्स दैट मूवमेंट ऑफ योर बॉडी एंड कीप्स यू सेफ एंड लेट्स यू वर्क and lets your body work the way it is needed when you are on challenging terrain. For example, if I am wearing a leather jacket, I don't have a lot of flex when I move my body like this. But adventure motorcycling में मैं बाइक के ऊपर खड़ा हूँ 70 की स्पीड पे, मेरे को बिल्कुल ऐसे मुड़ जाना है. When I do that, I don't have that kind of flex in a leather jacket. So ultimately, that jacket will restrict my movement. और जब वो रिस्ट्रिक्ट करेगी मेरी मूवमेंट, तो दैट इज मेकिंग माई राइडिंग अनसेफ. दैट इज नॉट टू से कि आप लेदर जैकेट नहीं पहन सकते, बट द जैकेट हैज टू बी अप्रोप्रिएट टू द काइंड ऑफ टेरेन एंड राइडिंग यू आर डूइंग. सेम फॉर द पैंट्स, सेम फॉर प्रोटेक्शन. अब अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें गियर में, अल्टीमेटली हम सारे प्रोटेक्शन के लिए गियर पहनते हैं. किसी को भी शौक नहीं है 45 डिग्री गर्मी के अंदर इतनी मोटी जैकेट पहन के घूमने का, बट सिंस वी आर डूइंग दिस फॉर मजा नॉट सजा, सो we need to wear that protection. Absolutely. और एक चीज इसमें एक और है कि जैसे कि एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग के अंदर जो गेयर्स होता है वो इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है, बिकॉज हम बहुत फास्ट नहीं जा रहे होते कि हम ट्रेल्स पे हैं या टेरेंस पे ऐसे हैं तो हमारी स्पीड 50, 60, 70 होगी मैक्सिमम, और उस पर इम्पैक्ट प्रोटेक्शन चाहिए हमें. और जब अगर हम टूरिंग पे जा रहे हैं या वो, तो वहाँ हमारी स्पीड 100 प्लस भी हो सकती है, वहाँ पे हमें एब्रेशन के लिए गियर चाहिए होता है. तो एक ये भी डिफ्रेंशिएशन होता है गियर में, थोड़ा सा आप इसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल. सो एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग में जब भी हम अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें कि क्या गियर पहनते हैं, वी स्टार्ट एट द टॉप. हमारी हेलमेट फ़र्क होती है, इसमें पीक होती है, इसके अंदर वाइजर अलग होता है. हम कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम मॉड्यूलर हेलमेट हार्डकोर एडवेंचर राइडिंग में ना पहने. ठीक है, आपने स्ट्रीट राइडिंग करनी है, उसके अंदर एडवेंचर मॉड्यूलर भी आती हैं कुछ, बट हम कोशिश करते हैं नॉट टू डू दैट, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो एक हिंज पीस है जॉ का, वो एक वीक पॉइंट है. तो वो वीक पॉइंट ना हो, दैट इज बेटर अगर आप ऑफ रोड हैं वेयर यू हैव बोल्डर्स, वेयर द इम्पैक्ट कुड एक्चुअली कॉज दैट हिंज पीस टू ब्रेक ऑफ. एंड एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग में एक चीज जो हमारे को सबसे पहले याद रखनी है वो ये है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक इम्पैक्ट की प्रोटेक्शन. एक इम्पैक्ट की प्रोटेक्शन हुई, वो चीज सैक्रिफिशियल थी, वो खत्म हो गई. सो यू डोंट नीड गियर विच वर्क्स ओनली फॉर वन इंसिडेंट.
You need gear which is designed properly to support you throughout your ride. So that is a big difference. और जैसे हेलमेट हो गई, हेलमेट के बाद अब बिकॉज हम ऑफ रोड राइड कर रहे हैं एंड जैसे आपने बोला वी आर स्लोअर देन व्हेन वी आर ऑन द स्ट्रीट, सो वी नॉर्मली नीड मोर वेंटिलेशन एंड ऑल्सो बिकॉज आप ऑफ रोड राइड कर रहे हो योर बॉडी इज वर्किंग ऑल द टाइम. इट इज लाइक अ 6-7 घंटे का प्रॉपर वर्कआउट. शाम को सारी दर्दें होती हैं, जिम में नहीं होती इतनी. तो वो वर्कआउट के एंड में यू आर स्वेटिंग, आपको हवा चाहिए, और व्हेन यू आर ओवर हीटेड your brain cannot focus on the road, it cannot focus on the maneuvers, so you will anyway be a less safe rider. To be a more safe rider you need to be in optimal condition, and वो optimal condition तब होगी जब आपको ventilation मिलेगी. एक street helmet, एक track helmet, चाहे वो कितनी भी safe हो, वो आपको ventilation नहीं दे सकती जो आपको एक motocross या adventure helmet देगी. इसीलिए हम उस पर गॉगल्स पहनते हैं, बिकॉज गॉगल्स में एक इम्पैक्ट प्रोटेक्शन है, पत्थर आते हैं, कीड़े आते हैं. अ लॉट ऑफ हेलमेट्स आर डिजाइंड फॉर यूरोपियन कंडीशंस, जहाँ पे यू डू नॉट नीड एज मच वेंटिलेशन एज वी डू इन इंडिया. सो व्हेन वी सिलेक्ट हेलमेट्स वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द वेंटिलेशन. मतलब वो उतना प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं होता है जितना इंडिया के अंदर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी सिलेक्ट. तो हेलमेट हुई, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा हार्डकोर ऑफ रोड कर रहे हो तो आप नेक ब्रेस पहनते हो, बिकॉज रोड के ऊपर भी इट्स ओनली व्हेन यू आर रेसिंग दैट यू नीड अ नेक ब्रेस, नॉट नॉर्मल स्ट्रीट राइडिंग. लेकिन ऑफ रोड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन टेरेन जहाँ पे अगर आप गिरोगे तो चोट लगेगी. एंड नेक ब्रेसेस एक्चुअली 85% रिडक्शन करते हैं इन कॉलर बोन इंजरीज. ऐसे ही एडवेंचर राइडिंग में जैसे आपने बोला इम्पैक्ट वर्सेस एब्रेजन, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, बिकॉज इम्पैक्ट एंड एब्रेजन में बढ़ाता जाऊं, प्रोटेक्शन बढ़ाता जाऊं, अल्टीमेटली वो इतना होगा कि कंसिडरिंग इंडियन एनवायरनमेंट वो इतना गर्म हो जाएगा गियर. मैं AAA रेटेड एब्रेजन प्रोटेक्शन भी पहन सकता हूँ, बट अगर मैं AAA रेटेड एब्रेजन प्रोटेक्शन इंडिया में पहन के बाइक चलाऊंगा तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, बिकॉज मैं डिहाइड्रेशन से रास्ते में ही मर जाऊंगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, ये सारी चीजें, बूट्स हैं, हमारे को इतने बड़े बूट्स पहनने पड़ते हैं बिकॉज पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, 300 किलो की बाइक गिरेगी तो पैर कहाँ बचेगा. हाँ, तो हमारा ज्यादा चांस होता है हमारी बाइक से हमको इंजरी होने की, बिल्कुल, ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग. या वेरी ट्रू. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस ना, हमारा जो गियर है इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट टू द काइंड ऑफ राइडिंग वी आर डूइंग. हाँ, तो वही मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारी बाइक से हम ट्रांजिशन करते रहे, हमारी राइडिंग गियर भी चेंज होती चली गई, और मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, लेकिन अनइंटेंशनली मैं चेंज करता रहा अपने आप को, है ना. एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, जो नकुल ने भी शेयर किया, कि राइडिंग गियर तो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, बट इंडिया के हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबल राइडिंग गियर होना चाहिए, उसकी चूज करना भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. So that is very important because we have a different terrain than different environment and the kind of temperature also. Absolutely. है ना. तो उसके लिए कैसे वेंटिलेटेड, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वेंटिलेटेड गियर होना बहुत जरूरी है. प्लस वो काम भी करना चाहिए उस टाइप की राइडिंग के लिए. सो वाटर प्रूफिंग भी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज उसकी जो सीम्स होती हैं गियर की, टेप्ड सीम्स होती हैं, वो लीक करना शुरू हो जाती हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश होती है, प्लस द फोर्स ऑफ द वाटर जब हम बाइक चला रहे हैं. सो ऑल ऑफ दैट एग्जैक्टली. हाँ, तो आई थिंक नकुल, वी हैव ऑफ द 3 pillars of adventure riding, we have covered the motorcycle, we have covered the gears. Now I find कि people do not invest on their riding skill. Tell us how important it is to invest on riding skills so that you can enjoy your riding to the best. So that is a very good point. I agree with you कि 3 पिलर होते हैं मोटरसाइकिलिंग के, the gear, the motorcycle and the skill. Unfortunately, especially in India and overall Southeast Asia, people have a tendency to skip over this third pillar. Yes. But पिलर तो 3 चाहिए. हाँ. नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं you will end up in a bad situation. तो इसलिए भी होता होगा कि हम लोग यहाँ पे बहुत अर्ली स्टेजेस पे कम्यूटिंग
टू व्हीलर पे शुरू कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता बाइक है। चलानी आती ही है हाँ। या टू मुझे व्हीलर तो चलाना आता आता ही ही है, तुम क्या है। सिखाओगे? तुम क्या सिखाओगे? हाँ। तो माइट बी दिस कैन बी अ वन मिथ वी Yes. कैरी एज अ कम्युनिटी विद Yes. अस दैट हम तो अर्ली स्टेजेस से स्कूटी या कुछ टू व्हीलर चला बचपन ही से रहे ही चला रहा हैं हूँ। तो इतना कुछ चला रहे हैं तो शायद चला ही हमें स्किल लेंगे। हाँ हमें स्किल की जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं बट यू आर वेरी राइट, आपने एक वर्ड यूज किया मिथ, एंड दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज अ मिथ दैट किसी को स्किल की जरूरत नहीं है या एडिशनल स्किल या लर्निंग की जरूरत नहीं है। हर इंसान को एडिशनल लर्निंग की जरूरत है, आपको भी है, आपको भी है, मुझे भी है। ऐसा कोई नहीं है जिसको एडिशनल स्किल से नुकसान होगा। एंड स्किल्स आर पेरिशेबल। आज आपने जा करके सीखा, इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट यू लूज इट। If you don't use that skill every day, every week, every month, you will no longer have the muscle memory, because यहाँ पे आपका reaction time matter करता है। When you are off-road, even more so, because the terrain is challenging and the consequences of failure, the consequences of an incident or accident are very high. Because you're in a remote location, you're in a location where you cannot get help. When you cannot get help, your only resource is your skill. Your friends and your skill. But आपके friends के अंदर भी skill होनी चाहिए आपको help करने की। Yes. Very true. Absolutely. Very तो true. अगर आपकी मोटरसाइकिलिंग स्किल आपके टेरेन और आपकी मोटरसाइकिल और आपके गियर के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, ये लेवल तीनों का मैच होना चाहिए। मैं समझा बोलता हूँ, योर कॉन्फिडेंस हैज टू बी मैच्ड बाय योर कॉम्पिटेंस। सिमिलरली your gear, your motorcycle and your skill have to come together to make one holistic package. तभी आप अपनी मोटरसाइकिलिंग लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। अब इसमें अगर आपकी स्किल में कमी है, दैट डज नॉट मीन कि आपको बाइक चलानी नहीं आती है। ऑल इट मीन्स इज कि अभी तक इस टेरेन को इस बाइक के साथ आपने नहीं चलाया है। एंड ऑल इट टेक्स इज अ लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। Money doesn't matter because ultimately you are doing this not to earn money. You are doing this and you're investing money on everything. Might as well थोड़ा सा अपने ऊपर भी invest करो. It'll get more enjoyment. I think the cost of the injury will be much higher than investing on the skill. So the last time someone asked me कि ये तो बहुत महंगा होता है ट्रेनिंग, तो I asked कि आपकी जो नी है ये कितने की है? एक चीज और है इसमें, जब हमने मोटरसाइकिलिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब राइडिंग पैशन स्टार्ट हुआ था, तब लोग सिर्फ मोटरसाइकिल के ऊपर फोकस करते थे कि हमको मोटरसाइकिल लेनी है। लोग राइडिंग गियर, हाँ, और राइडिंग गियर के ऊपर भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि द स्लोली पीपल हैव गॉट अवेयरनेस कि अगर मेरे को मोटरसाइकिल चूज करनी है तो मेरे को उसके हिसाब से राइडिंग गियर भी लेना है। मतलब दे इन्वेस्ट ऑन द सेफ्टी। तो And I ये think it's थर्ड now- पिलर को अभी भी लोग Now थोड़ा time सा, to हाँ, focus on the skills also. एब्सोल्युटली। तो ये थर्ड पिलर का, और जैसे नकुल ने बताया कि इट बिकेम वन पैकेज, लाइक योर मोटरसाइकिल, योर राइडिंग गियर एंड द स्किल। Yeah. इट बिकेम अ वन पैकेज टू एंजॉय और एक्सपीरियंस योर मोटरसाइकिलिंग एट द नेक्स्ट लेवल। Right. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एग्री। एंड अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, व्हेन आई स्टार्टेड आई जस्ट न्यू हाउ टू राइड। मुझे ऑफ रोड चलाना नहीं आता था। मेरे को नहीं पता था कि गड्ढे के आ रहा है तो खड़े क्यों होना है। अच्छा, अब अ वेरी अनदर मिथ से मेरे को याद आया कि एक बड़ी कॉमन मिथ है जो आजकल, अब बिकॉज एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग हैज़ बिकम कॉमन, तो पीपल हैव अंडरस्टूड कि वीडियोस देख करके कि गड्ढा आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, खड़े हो जाओ। अब वो खड़े हो जाते हैं, उनकी नीज लॉक्ड होती हैं, तो बैठने खड़े होने में फायदा क्या? देयर इज नो डिफरेंस। वही शॉक आपकी स्पाइन पे ट्रैवल कर रहा है जो बैठ के करता, वो यहाँ कर रहा है। आपके घुटने आपकी सेकेंडरी सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्ब करती हैं। सो थिंग्स लाइक दिस, जस्ट योर पोस्चर व्हेन यू आर स्टैंडिंग मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेफ and being unsafe. And ultimately the skill makes you safe, and it is not कि आपने ऑफ रोड स्किल सीखी तो आप ऑफ रोड ही चलाओगे। ऑफ रोड स्किल रोड के ऊपर ज्यादा जरूरी है, और हमारी रोड्स पे तो अल्टीमेटली जरूरी है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई ऑलवेज से, इवन आप देखो ट्रैक राइडर्स, पीपल हु आर ट्रैक चैंपियंस, जिनके नाम बिलबोर्ड पे आते हैं, ऑल ऑफ देम ओन एन ऑफ रोड बाइक और एडवेंचर बाइक। व्हाई? बिकॉज द स्किल दैट दे लर्न ऑफ रोड helps them on road and on the track, because आपको body balance आता है, आपको reaction times आपके जो हैं वो कम हो जाते हैं, you become more efficient, and ultimately you can handle things that come up suddenly. जो हमारे को रोड पे तो है, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी आदमी आ जाता है, कभी रेडी आ जाती है,
ट्रक तो वैसे ही उल्टे आते हैं. So considering all of that, आपको at any given point of time you have to be focused, you have to be ready. आपकी peripheral vision should be very wide and आपके peripheral vision में क्या movement हो रही है इधर 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 वो आपको दिखनी चाहिए. And simultaneously your brain has to process it at speed. Your hands have to, and your feet and your back and your core, all of it has to react to what is going on here, all at the same time, and all in synchronization. और जब तक वो नहीं होगा, it is very hard to be a safe rider. I won't say it is impossible. In my opinion, it is very hard. So, but ये सब करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, and you have to learn from someone who actually knows what they are doing. ऐसा है कि आज की वीडियो के अंदर देखो हमने 3 चीजें एस्टेब्लिश की हैं, 3 पिलर्स जिसको हम कहते हैं. 1 इज योर मशीन, 2nd इज योर राइडिंग गियर एंड 3rd इज द स्किल. सो ये तीनों एलिमेंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा. वेरी ट्रू. तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you, Nakul, for being there on RRT with us. We had a wonderful session on off-roading and adventure riding, and I think we have covered almost everything regarding adventure riding. Thank you for having me. And if anyone has questions or they want more information on any aspect of what we've discussed, please put it in the comments below and we'll try our best to answer it. If you found this video useful, do like, share and subscribe. Ride safe.